Hello everyone, I hope you all are doing great. Today we will start our new topic, that is capacitor, right? So it's very important topic and very easy to understand. So let's start our topic. So you will see here, this is the capacitor that we use in the lab, that is a practical capacitor, right? So you will see here the capacitor have two pins, right? One is shorter one and other one is longer one. The longer pin shows that it has positive terminal, right? So this pin depicts the positive terminal of the capacitor, right? So this longer one is a positive one and the shorter pin depicts it's a negative terminal. So when you connect the capacitor in lab, right, with positive or negative terminal of the battery or anything else, then you will see while connecting the capacitor you will remember that which pin will be negative and which pins serve as a positive terminal, right? So longer one will act as a positive and the shorter one will act as a negative terminal. Okay, so let's start our topic. Yes, so what's the theory of capacitor and what is capacitor actually? In the previous lecture I have given you overview that what is capacitor and how it's used, right? So what is capacitor? Basically capacitor is a mix, that means combination of two conductors. When we combine two or more conductor, then it form a capacitor, right? So what is first conductor? Conductor is a charge, conductor is a substance or device you can say that can conduct the electricity, right? So when you combine two conductor in a parallel combination, then it form a capacitor, right? So you will see here in form of parallel in the sense adjacent to each other, the plates are adjacent to each other, then it form a capacitor. And what is the basic function of the capacitor? It helps to store large amount of charge. That means capacitor क्या help करते हैं? Maximum to maximum charge store करने के लिए, right? So it's a basic function of the capacitor. So please remember what is capacitor? It helps to store the large amount of charge. That means बहुत ज़्यादा charge जब हमें store करना होता है for a small period, for a short period, we can use the capacitor, right? So other name of capacitor is condenser. So capacitor condenser is same thing. The one is store large amount of charge, and how it's formed by combining two conductors to each other, right? So let's discuss how capacitor work. That means what is the principle of capacitor. So in the practical capacitor, as you see above, there are two legs, that means there are two pins of capacitor, right? So one is longer one and one is shorter one. So how you will connect? But while understanding the capacitor, you will draw two conductor pins, right? Because it's made up of two conductor. So first one is this one A and second one is B. I name it A and B. For example, if you take one conductor, yes, if you take one conductor, then see, this is a positive charge, right? So I spread the positive charge over this conductor, over this rod, right? So this act as a one plate of the capacitor, right? Because the capacitor made of two plates, but I spread the charge only on one plate, that is positive charge I will spread on this plate, that is A plate, right? And the B plate for the time being is a neutral one, that means there is no charge on the B plate, right? So what is a neutral means? That means this plate have positive and negative charge in equal amount, so it will cancel each other, then it becomes a neutral. That means इसमें positive charge भी होगा और negative charge भी होगा, लेकिन but वो equal amount में, इसीलिए वो हमें charge दिख नहीं रहा है, that means becomes a neutral. तो वो दोनों charges आपस में cancel कर रहे हैं, right? So in first step you will see कि मैंने first rod पे first Q plus Q charge spread कर दिया and B जो rod है वो neutral है, right? उस पे कोई charge नहीं है. Now when you bring a neutral uncharged plate to closer to a charged body, as you know, induction हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कूलम्स लॉ वाले चैप्टर में, राइट? सो बाय इंडक्शन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि न्यूट्रल है, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, राइट? सो इट्स अ पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव भी कुछ होगा, राइट? सो इट विल अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस साइड. दैट मीन्स बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज विल कम over this side for the B plate, right? If negative charge comes here, then left one is positive charge. So on the other side of B plate, farthest apart, there is a positive charge here, right? So that means by induction there is minus Q charge,
एंड हियर इट्स ए प्लस क्यू चार्ज। तो ये इंडक्शन किसकी वजह से हुई है? ड्यू टू दिस ए प्लेट। दैट मीन्स सारी ट्राई किसने की है? ए वाली प्लेट ने, टू अट्रैक्ट द चार्जेस माइनस क्यू टुवर्ड्स द this one part, right? This side, and this side left one, that is positive charge. Now you see what is the concept of capacitor. So basically A tries to attract the charges toward the positive charge. That means A ने अगर कुछ ना कुछ काम किया, that means उसका पोटेंशियल अब कम होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले प्लस क्यू चार्ज था, उस पर पोटेंशियल भी V होगा, राइट? V हम पोटेंशियल के लिए यूज करते हैं। नाउ if this plate tries to attract this negative charge towards itself, that means its potential is decreased because इसके चार्ज ने ट्राई किया है इसको अट्रैक्ट करने के लिए, सो इसका चार्ज भी कम होगा और पोटेंशियल भी कम होगा, राइट? सो व्हेन B starts charging then A starts uncharging, right? तो that means potential decrease होगा और चार्ज भी कम होता जाएगा। Now you will see कि अगर A का चार्ज कम होगा, जितना A का चार्ज कम होता जाएगा, क्योंकि हमें इसको बार बार चार्ज अप करना पड़ेगा ताकि इसका पोटेंशियल सेम रहे और ये बार बार उसको चार्ज करता रहे, B प्लेट को भी, राइट? सो दैट मीन्स हम अगेन एंड अगेन इसको चार्ज स्प्रेड करते जाएंगे, अगेन एंड अगेन इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी चार्ज को स्टोर करने की। जितना ये इंडक्शन से इसको चार्ज करता जाएगा उतना इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। हम दोबारा उसको सेम पोटेंशियल पे लाना चाहेंगे, हम दोबारा उसको चार्ज स्टोर करने के लिए देंगे, दैट मीन्स इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, राइट? सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। हम करते क्या है कि हम चार्ज स्टोर करते हैं बार बार अगेन एंड अगेन। वो क्यों होता है? क्योंकि ये सब अपना पोटेंशियल यूज कर लेते हैं इसको ट्रैक करने में, राइट? सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। नाउ थर्ड, सो दिस वन प्लीज यू विल रीड नाउ। ओके, थर्ड डायग्राम में मैंने क्या किया है, आपको मैंने सेकंड डायग्राम में दिखाया कि इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, इसने अट्रैक्ट किया नेगेटिव चार्ज को। नाउ दिस पार्ट पे हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अगर मैं इस वाली साइड को ग्राउंड से साइड से कनेक्ट कर दूं, ग्राउंड से, दैट मीन्स सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, राइट? सो दैट मीन्स धीरे धीरे ये पूरी की पूरी प्लेट जो सिर्फ इस साइड पे पहले सेकंड वाले में डायग्राम में सिर्फ यहीं से नेगेटिव थी, अब पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होने लगेगा। तो आप देखोगे कि जब पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होने लगा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से, इसने अट्रैक्ट किया था, तो इसका पोटेंशियल और कम होता जाएगा। दैट मीन्स जब हम किसी अनचार्ज प्लेट को इंडक्शन से चार्ज करते हैं और देन कनेक्ट भी कर देते हैं ग्राउंड के साथ, तो जो कर रहा होता है उसका कैपेसिटी बढ़ती जाती है, उसका पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि वो अपना चार्ज और रीगेन करेगा, उसको सेम पोटेंशियल रखना है। दैट्स व्हाई दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, राइट? सो व्हाट इज नाउ कैपेसिटेंस? इज अ चार्ज अपॉन पोटेंशियल, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, राइट? सो हमने देखा यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था पर कैपेसिटी बढ़ रही थी क्योंकि उसको और चार्ज चाहिए अब स्टोर करने के लिए। सो कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि पोटेंशियल कम हो रहा है तो कैपेसिटी कैसे बढ़ सकती है। पोटेंशियल कम होगा तभी तो वो ट्राई करेगा ना कि उसको अपने अगेन पोटेंशियल पे सेम आना है, तो वो चार्ज और स्टोर करेगा। जैसे जैसे चार्ज स्टोर होगा उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और चार्ज स्टोर करने की, राइट? ताकि वो और को नेगेटिव बनाता दे, इसको पूरी की पूरी नेगेटिव बना दे, राइट? सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, हाउ इट्स वर्क। So capacitance become equal to Q by V, or you can say Q is equal to CV. As the potential decreases, capacitance will increase. So हम कैपेसिटर कैसे इंक्रीज करते हैं? चार्ज देते जाएंगे, इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। So C will increase by increasing the charge. Now, so this is the basic principle. So you can write Q is equal to CV. Now it's a pictorial representation कि कैपेसिटर को हम कैसे शो अप करते हैं। That is दो कंडक्टर्स होते हैं, one is positive, one is negative. आपने देखा नेगेटिव कैसे बना, सेकेंड वाली प्लेट। So capacitor made up of two plates oppositely charged but magnitude same. अगर एक प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू होगा, राइट? ओके, ये तो हो गया फिक्स कैपेसिटर की, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? जो एक बार कांस्टेंट है। अगर यहाँ के बीच में कैपेसिटर में एरो शो करते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल कैपेसिटर, दैट मीन्स हम उस कैपेसिटर की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, राइट? सो यू विल सी द difference between the variable capacitor and the fixed capacitor in lab, right? Okay, now what is the purpose of capacitor? Capacitor is used to store electric charge or amount of electrical energy that we, but the charge or electrical energy stores for a very small period, right? So जो भी एनर्जी या चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर में बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, राइट? तो हम इसको मोटर्स में यूज करते हैं, फैंस में, कंप्यूटर्स में, कि अगर ऑटोमेटिकली लाइट ऑफ ऑन होती है या राइट या फैंस में, तो हम मोस्टली आप फैंस में तो देखते भी हो कैपेसिटर को, राइट? तो कैपेसिटर यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। नाउ व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ क्यू एंड वी? आपने देखा जैसे जैसे
अब चार्ज बढ़ता है, पोटेंशियल इंक्रीजेस, राइट। सो बेसिकली जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल, क्योंकि हम कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है एक बार जब पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे वो अपनी पोटेंशियल रीगेन करता जाता है, राइट। तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ए वाली प्लेट का पोटेंशियल अगेन इंक्रीजिंग। सो दैट्स वाई द डायग्राम इज अ लीनियर वेरिएशन, जैसे जैसे सॉरी ग्राफ नॉट डायग्राम, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी, राइट। सो नाउ वी डिस्कस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट मींस जैसे हमने डिस्कस किया इसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलली see these are adjacent plates, तो parallel to each other, this is positive and this one is negative, right। तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस निकालनी है कि उन दोनों प्लेट के बीच में कितनी कैपेसिटेंस होगी, राइट। तो आप बोलोगे C is equal to Q upon V, that is the basic general formula। अभी हमें देखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैसे हम फाइंड आउट करें, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑब्वियसली, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हम कैसे शो अप कर सकते हैं कैपेसिटेंस को, राइट। सो लेट्स सी। सो दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज अ नेगेटिव प्लेट। एज यू नो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में किया था हर एक पार्ट पे, इसको हमने फर्स्ट शो किया था, इसको सेकेंड पार्ट, इसको थर्ड पार्ट। हमने देखा था यहाँ पे और यहाँ पे जब दोनों ऑपोजिट चार्ज की प्लेट्स लेते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है और सिर्फ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है, राइट। हाउ आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट अगेन। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंगल प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, राइट। अगर मैं इस प्लेट को फोकट कर दूं कि सिर्फ एक ही प्लेट है तो सिंगल प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। दो प्लेट की वजह से टोटल हो जाती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बट द टोटल डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में आप देख रहे हो। सी अगर आप इस बीच वाले रीजन में देखो, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड मूव करती है, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, दैट मींस इसने रिपेल किया, इसने अट्रैक्ट किया लेकिन अपनी तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड प्लेट की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को प्लस करोगे इट विल बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन, राइट। सो दैट मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दोनों की वजह से इनसाइड रीजन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यही चाहिए थी बेसिकली, हमने कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, हमने कैपेसिटर के बीच में उसकी कैपेसिटी देखनी है कितनी चार्ज स्टोर करने की। बट वी विल सी कि बाहर भी क्या होता है। बाहर क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा लाइक दिस डायरेक्शन, आई विल शो हियर, यस। तो इसकी वजह से डायरेक्शन एरो की इधर होगी, राइट। और इसकी वजह से नेगेटिव की वजह से सो इसकी वजह से नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर, राइट। इस रीजन में बना रही हूँ इसलिए मुझे यही बनाना पड़ेगा, बट है इस सेकंड वाली चार्ज, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट, तो इस पे प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन चेंज तो उस पे माइनस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो इट विल बिकम 0। सिमिलरली फॉर दिस पोर्शन, ये नेगेटिव है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, सी दिस सिंबल, पॉजिटिव है रिपेल कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट है 0 क्योंकि माइनस साइन। सो दैट्स वाई आई विल से कि सिर्फ बीच वाले रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, राइट। सो आई होप अप टू दिस पॉइंट कि हमें ये पता चल गया कि अभी कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिर्फ एक शीट की वजह से, दोनों की वजह से है और सेम डायरेक्शन है तो इट विल बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने डिस्टेंस ले लिया d, राइट। नाउ वी विल सी, हमने देखा आपको पता है हम इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, तो प्लस सिग्मा, आपको लगेगा कि ये तो लाइन है हमने लैम्डा क्यों नहीं लिया। सी आपको ये लग रहा है कि ये लाइन चार्ज डेंसिटी है, बट इट्स अ 2D, ये थोड़ी विड्थ में है, राइट। सो इट्स अ सरफेस, नॉट एक रोड है सिर्फ, बट इसकी कुछ ना कुछ विड्थ है, इसलिए हम इसको सरफेस की तरह कंसीडर कर रहे हैं, राइट। सो प्लस सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ए प्लेट एंड माइनस सिग्मा, माइनस क्यू क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है बी प्लेट पे, प्लस क्यू क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, राइट। सो नाउ यू विल सी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इन बिटवीन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन बिटवीन दी 2 प्लेट्स। और हमें पता है सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, राइट। सो E इज इक्वल टू Q की जगह चार्ज अपॉन एरिया, राइट। तो आप पुट कर सकते हो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन, क्योंकि अब मैंने सिग्मा की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी Q अपॉन A। सो इक्वेशन विल बिकम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट। सो मार्क दिस एज ए सेकेंड इक्वेशन। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लीज रिमेंबर, आप ये आपको फॉर्मूला एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में अगर हम उसको कुछ ना कुछ से, आई विल ड्रॉ द डायग्राम, अगर यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज लगा रखी है, राइट, तो इसका क्या है V वोल्टेज की बैटरी, राइट,
और यहाँ पे एक कैपेसिटर है फॉर एग्जाम्पल, यस, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे और सिमिलर लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे सी वो V वोल्टेज का मैं इसको चार्ज कर रही हूँ कैपेसिटर को, और इन दोनों चार्ज कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस कितना है, D लूंगी मैं, राइट। सो डिस्टेंस इज D। तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, इस पोटेंशियल वोल्टेज की वजह से आपने बैटरी लगा दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, V अपॉन D, राइट। तो D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड V वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, तो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। सो एक तरफ से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया ये वाला, सेकंड वाला, और सेकंड हमने यहाँ से ड्राइव किया। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वल कर सकते हो, वाई, क्योंकि देखो यहाँ से E निकाल, अगर यहाँ से आप E निकालना चाहो तो क्या होगी, V अपॉन D हो जाएगा सिमिलरली, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली यहाँ से E की इक्वेशन यहाँ पुट कर दो, आपके पास पोटेंशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट। तो आपने E की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दी, V बिकम QD डिवाइड बाई A एप्सिलॉन, वेयर A इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, राइट। सो यहाँ पे A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम ही है, तो एक का जितना A है उसका भी A ही है, राइट। सो A here is the area of plate. Now, so आपको पोटेंशियल पता चल गया कितना है, V इज इक्वल टू क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट, और हमें अभी फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने, C क्या होता है, Q अपॉन V पोटेंशियल के लिए। नाउ यू विल सी, अगर C Q अपॉन V है तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में V की वैल्यू पुट कर दी, E एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल, यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दैट मीन्स कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, right? I hope you will understand this derivation, and please remember this formula. Many conceptual, many MCQs are asked. As you know, your paper is a conceptual one, MCQ on one marks starting portion. For 1 marks MCQs are asking, right? So the MCQs from this portion always asking that अगर हम D को इंक्रीज कर दे क्या होगा, D को हाफ कर दे क्या होगा, एरिया को बढ़ा दे क्या होगा, एरिया हाफ कर दे क्या होगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, राइट। सो आपकी बुक में बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लीज ट्राई देम। ओके, नाउ यू विल सी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, एंड एप्सिलॉन नॉट प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। सो दैट मींस कैपेसिटेंस एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, दैट मींस अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे कैपेसिटेंस कम होगी, एरिया बढ़ा देंगे कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। अगर आप मीडियम चेंज कर देंगे, डिपेंड करता है कैपेसिटेंस कैसे वेरी करेगी, राइट। तो ये एप्सिलॉन नॉट तो हम यूज करते हैं जब C, ये वाली डेरिवेशन हम लास्ट में एक और मेथड से करेंगे। मेथड इन द सेंस कि अभी तो हमने किया कि इन प्लेट्स के बीच में एयर है, कोई और मीडियम नहीं है, राइट, इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया। अगर इन प्लेट्स के बीच में मैं कोई और मीडियम डाल देती हूँ, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल देती हूँ, डाई इलेक्ट्रिक आई विल एक्सप्लेन, दैट्स व्हाई आई विल स्किप दैट डेरिवेशन, राइट। अगर आपको बुक में while doing this derivation आपको वो डाई इलेक्ट्रिक वाली डेरिवेशन मिलती है, प्लीज स्किप दैट पोर्शन, आई विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सो तो अभी हमने किया कि अगर सिर्फ एयर है दोनों प्लेट्स के बीच में तो डेरिवेशन क्या होगी, तो तब हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। अदरवाइज दिस एप्सिलॉन नॉट विल चेंज अगर कोई ना कोई मीडियम की हम प्लेट डाइलेक्ट्रिक हम उसमें प्लेस कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज आपके सिलेबस में प्लीज रिमेंबर बुक में बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अभी लास्ट ईयर से आपके इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक स्किप कर दिए गए हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर की न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं मे बी, बट नॉट इन योर सिलेबस, और डेरिवेशन इज स्ट्रिक्टली नॉट इन योर सिलेबस, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑल्सो प्लीज डोंट दैट डेरिवेशन, आई विल राइट हियर ओनली द फॉर्मूलाज, यू कैन try 1 or 2 numericals on based on this, otherwise please focus on basically parallel plate capacitor, right? So what is the formula for spherical capacitor? That is 4 pi epsilon naught AP divided by B minus A. So spherical capacitor में भी 2 प्लेट्स होती है बट शेप चेंज कर दी है, जैसे वहां पे parallel plate capacitor में स्ट्रेट रोड्स थी, यहाँ पे सर्कल्स बन जाते हैं, राइट, तो एक शेल बन जाता है। तो अंदर वाले स्फेरिकल कैपेसिटर क्योंकि 2 चीजें लेनी है, 2 कंडक्टर लेते हैं, एक अंदर एक बाहर, जैसे हमने वहां पे 2 प्लेट्स ली थी, सिमिलरली हेयर भी दो प्लेट्स ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा सिर्फ शेप। तो जो स्मॉलर वाला उसका ए रेडियस होगा और बाहर वाला जो आउटर वन है उसका बी रेडियस। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, राइट। सिमिलरली फॉर द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आप देखोगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में भी शेप चेंज हो गई है। सिमिलरली 2 रोड्स हैं, अंदर वाला सिलेंडर और बाहर वाला, एक अंदर वाली प्लेट एक्ट करती है, एक बाहर वाली जैसे पहले थी। अंदर वाली प्लेट का ए रेडियस एंड सेकेंड वन का बी, एंड लेंथ इज द
L is the length of the cylinder. So formula will become 2 pi epsilon naught L divided by natural log of P upon A. Please learn that formula, not do derivation, right? Okay. So please, this question is very important. आपके CBSE 2017 में already पूछा जा चुका है. So आपको ये question बहुत बड़ा लग रहा होगा देखने में, लेकिन it's very easy question. A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volt. That means एक capacitance को connect कर दिया गया बैटरी के साथ. कितने वोल्टेज की बैटरी है? V वोल्टेज की, राइट? नाउ अगर चार्ज ऑफ 360 माइक्रोकूलम इज स्टोर्ड इन, तो उस टाइम पे कितना चार्ज स्टोर होगा उस पे? 360 माइक्रोकूलम. लेट्स सी पहले इतने पोर्शन पे क्या बन सकता है. तो फर्स्ट के लिए हमने देखा चार्ज 360 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, कैपेसिटेंस C हमने लेट कर लिया और पोटेंशियल V हमने दिया हुआ है. तो Q इज इक्वल टू CV होता है. मैंने फर्स्ट इक्वेशन बता दी क्योंकि मुझे C नहीं पता, V नहीं पता, 360 पता है बस, राइट? दैट मीन्स चार्ज है. और ये अननोन कैपेसिटेंस और V की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. प्लीज रिमेंबर, कैपेसिटेंस में कैपेसिटी, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी हम पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग दैम चार्ज, उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, राइट? बट कैपेसिटर के कांस्टेंट कैपेसिटर की वैल्यू ले रहे हैं. जैसे मैंने बताया था, नॉर्मली हम कांस्टेंट कैपेसिटर यूज करते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर नहीं यूज करते. तो कैपेसिटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो C विल सेम. चाहे आप चार्ज बढ़ाओ, चाहे आप चार्ज ज्यादा करो, चाहे आप पोटेंशियल डिक्रीज करो, बढ़ाओ, कैपेसिटी उसकी सेम रहेगी. बट हाँ, कैपेसिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं चार्ज उसको ज्यादा देके या कम देके, राइट? तो कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, बट कैपेसिटर की वैल्यू आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उसके स्टोर करने की पावर को चेंज कर सकते हो, राइट? सो नाउ क्योंकि कैपेसिटर हमने बेसिकली पढ़ा है कि चार्ज स्टोर करने के लिए बनता है, तो चार्ज की वैल्यू तो ऑब्वियसली वेरी करेगी, राइट? बट हम C कांस्टेंट ही लेके चलते हैं. सो नाउ यू विल सी, नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं. यहां तक हो गया. व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, दैट मींस अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए, पहले कितना था V, अब V माइनस 120 वोल्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि 120 से डिक्रीज हुआ पोटेंशियल. सो नाउ यू विल सी चार्ज स्टोर कितना हो जाएगा? 120 में. पहले 360 था, अब चार्ज भी डिक्रीज हो गया 120 माइक्रोकूलम, राइट? डिक्रीज नो, इट्स इंक्रीज, बिकॉज -6 पावर है. अगर नेगेटिव पावर में आगे जो कोफिशिएंट होता है वो कम हो, तो बेसिकली वो चीज इंक्रीज होती है, राइट? सो यू विल सी 360 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 10⁻⁻6 करोगे, यहाँ पे 0.12 करोगे, राइट? सो यू विल सी 10⁻⁻6 और यहाँ पे भी 10⁻⁻6. बेसिकली नेगेटिव पावर देखोगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा होता, कैपेसिटर बिकम्स माइक्रोकूलम. तो नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे. यू विल जस्ट फॉरगेट जो डिस्कशन मैंने अभी की. अगर आपको नहीं भी समझ आई, सिंपली जस्ट एक, पहले हमें 360 माइक्रोकूलम दिया होता, अब हमें 120 माइक्रोकूलम दे दिया है, तो चार्ज विल C चेंज, राइट? तो 120 माइक्रोकूलम. C मैंने बताया कांस्टेंट लेना है, वोल्टेज उन्होंने खुद ही बता दी कि 120 रिड्यूस कर दिए. सो नाउ इक्वेशन विल बिकम Q प्राइम इज इक्वल टू CV प्राइम. Q ऑफ 120 हो गया, C एज इट इज. V प्राइम मतलब डिक्रीज हुआ 120 से, तो पहले V था, अब 120 डिक्रीज होगा, तो V माइनस 120 लिखेंगे. सॉल्व इट. CV C into 120. इक्वेशन विल बिकम 120 इज इक्वल टू CV माइनस 120C. आपको CV की वैल्यू फर्स्ट पार्ट से पुट कर दो यहाँ पे 360. सॉल्व करो, यू विल गेट C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड. तो ये तो हमें अननोन कैपेसिटेंस मिल गया. अगर C पता चल गया तो हम V भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे C पुट करो, V निकाल लो, राइट? आपको इजिली V पता चल जाएगा, दैट इज 120 वोल्ट, राइट? ओके, नाउ अप टू दिस आई थिंक यू विल बी क्लियर. नाउ व्हाट वुड हैव बीन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इफ वोल्टेज विल इंक्रीज बाय. अब 120 वोल्टेज इंक्रीज कर दी जितनी पहले थी. हमने अब अननोन कैपेसिटेंस V निकाल ली थी, कितनी आई है? वो 180 आ गई थी. तो 180 पहले थी, राइट? यस, कैपेसिटेंस फॉर्म देख लें. यस, वोल्टेज हमारी 180 आ गई और 120 और बढ़ा दिया, तो 180 प्लस 120 कर देंगे, वो तो हमारी वोल्टेज हो गई. कैपेसिटेंस हमने ऑलरेडी निकाली है, वो हमें पता है कांस्टेंट रहती है. तो व्हाट यू विल गेट नाउ, V हमने निकाली 120, 120 और इंक्रीज होगी, 120 प्लस 180 दैट विल बिकम 300, राइट? Q हमें फाइंड आउट करना है, C हमने पहले निकाल लिया, वो कांस्टेंट रहती है. C और V दोनों पता, चार्ज निकालने, मल्टीप्लाई, Q विल गेट 600 माइक्रोकूलम, राइट? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट आपको कंसेप्ट फॉलो करते जाना है. क्वेश्चंस आर वेरी इजी, प्लीज डोंट गो ऑन स्टेटमेंट की स्टेटमेंट्स आर वेरी लॉन्ग, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इट इज बेस्ड ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. सो दिस इज हिंट फॉर यू, यूज दिस फॉर्मूला, गिव मी आंसर इन कमेंट सेक्शन दैट व्हाट यू विल गेट योर आंसर, राइट? सो प्लीज रिप्लाई मी इन कमेंट सेक्शन. Okay, so next is, if you find any difficulty please let me know.
Next is grouping of capacitors. Very important topic of this chapter, right? So capacitors को हम grouping means कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दे या पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो कैपेसिटर्स में की कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ता है, तो हम फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं। बेसिकली इन दोनों के दो पार्ट्स होते हैं इसके, एक सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटर को, सेकेंड वन इज पैरेलल। तो ये वाले फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे अभी, राइट। बट डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछता, बहुत रेयर है कि आपसे डेरिवेशन पूछ ली जाए। आपको हमेशा न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत मिक्स्ड अप और बहुत कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल आते हैं, राइट। सो प्लीज ट्राई न्यूमेरिकल एज मेनी एज यू कैन ऑन दिस टॉपिक, राइट। प्लीज डू अनसोल्ड, सोल्ड न्यूमेरिकल, जो फिगर्स आपको आपकी बुक में मिलेंगी, फिगर्स वाले न्यूमेरिकल्स प्लीज ट्राई इट मैक्सिमम, राइट। स्टेटमेंट वाले आप स्किप भी कर सकते हो 2 और 3 करके, बट फिगर्स वाले मैक्सिमम जितना आप सोल्व करवाओ प्लीज यू कैन डू। नाउ मैं एक न्यूमेरिकल इस लेक्चर में करवाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे फिगर्स के बेस्ड पे, राइट। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो, आई विल अगेन एंड अगेन रिपीट, क्योंकि ये आप अगर नहीं पूछोगे तो आप भूल जाओगे, राइट, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मीन्स व्हेन यू कनेक्ट द कैपेसिटर्स इन अ सीरीज। तो ये एक कैपेसिटर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये एक कैपेसिटर बनता है, राइट। फिर सेकंड, फिर थर्ड, तीनों सीरीज में कनेक्ट किए गया, मतलब एक साथ, राइट। तो प्लीज रिमेंबर, जब भी किसी चीज को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे उसमें सेम करंट फ्लो करता है। यहाँ पे मैंने V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो अगर मैं V वोल्ट की बैटरी लगाई, पहले इस पे चार्ज स्प्रेड होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल चला जाएगा। इसमें मान लो V1 गया, तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा, राइट। V1 तो नहीं जाएगा, या सारा का सारा V तो नहीं जाएगा हर एक पे, तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। प्लीज रिमेंबर, करंट सेम जाता है बट पोटेंशियल विल डिस्ट्रीब्यूट। सो V1 is the potential across this capacitor, V2 is the potential across this capacitor, and V3 is the potential across this capacitor, right? C1 is the capacitance of this, C2 is this, and C3 is the for this third one. V is the total. Now अगर हम देखें Q चार्ज सेम है, Q इज इक्वल टू CV होता है, मुझे V देखना है। V1 को मैं Q अपॉन C1 लिख सकती हूँ, इसके अलॉन्ग है। नाउ सेकंड के अलॉन्ग V2 है, दैट इज Q अपॉन CT, क्योंकि चार्ज तो सेम है तीनों के अलॉन्ग, राइट। प्लीज करंट या चार्ज सीरीज में सेम रहते हैं, वोल्टेज वेरी करती है, राइट। बट अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो वोल्टेज सेम होगी और करंट चेंज हो जाएगा या चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, राइट। सो V3 में Q अपॉन C3। टोटल अगर V है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकती हूँ, इट विल बिकम Q कॉमन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बट आपको पता है वोल्टेज को अगर मैं तीनों को ना डिवाइड करके सिर्फ एक कैपेसिटेंस देखूं कि उसका टोटल कैपेसिटेंस, तीनों को कनेक्ट करके मैं CS लिख दूं कि तीनों कैपेसिटेंस का इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस आ रही है वो CS है। S मीन सीरीज में, राइट। तो V टोटल का वोल्टेज है, तो मैं उसको चार्ज तो सेम रहेगा, तो मैं Q अपॉन CS लिख सकती हूँ। ओके, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दीजिए। You will get Q upon CS is equal to Q ब्रैकेट में 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Q will cancel each other. You will get 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So this will be the formula. Please remember सीरीज के लिए 1 by होता है, पैरेलल में अब हम ये करेंगे वो बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, C1 plus C2 plus C3, that is the effective one. But in the series combination reciprocal होता है, राइट। और न्यूमेरिकल में बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे वैल्यू भर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे उल्टा करना भूल जाते हैं, रेसिप्रोकल नहीं करते हैं, 1 by CS की वैल्यू को CS लिख के आते हैं। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स, राइट। ओके, नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल इज V वोल्टेज की बैटरी लगाई, मैंने बताया आपको पैरेलल में सी अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, वोल्टेज विल सेम, राइट, बट चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि अगर यहाँ पे से एक I करंट गया तो यहाँ पे चार्ज करंट कुछ यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे सेम नहीं जाएगा, राइट। सो पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है, जितना V यहाँ V तीनों में, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट। प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। सो नाउ अब चार्ज सेम है, सॉरी पोटेंशियल सेम, Q1 कितना होगा पहले पे C1 इंटू V, सिमिलरली सेकेंड कैपेसिटर पे C2 इंटू V, थर्ड पे C3 इंटू V, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, पुट करिए वैल्यू V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3। सिमिलरली अगर मैं इफेक्टिव देखना चाहूँ, टोटल चार्ज तो Q है, राइट, टोटल चार्ज Q होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस तीनों को मिला के CP बन जाएगा, नेम दिया है जस्ट P मतलब पैरेलल, वहां पे CS का मतलब सीरीज, V सेम रहेगा, Q सेम है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेट राइट हैंड साइड्स, यू विल गेट CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
राइट। सो Cp is equal to C1 plus C2 plus Cn. अगर बहुत सारे चार्जेस कर दिए Cn तो प्लस अप टू Cn, राइट। सो in this lecture I will do only one numerical. This one is easy one, but please in paper the very tough numericals, confusing numerical, not we say when you solve 2 or 3 numericals it will become easy for you doing that type of numericals, right? So we will do the numericals tough one also in next lecture. Please try from easy one, right? So calculate the equivalent capacitance of combination as you shown in figure. तो आपको ये फिगर शो दे रखी है, C3 की वैल्यू दे रखी है, ये इस टाइप से कनेक्टेड है, फिगर दे रखी है, C1 की वैल्यू 5 माइक्रोफैरेड, C2 की 10 माइक्रोफैरेड, C3 की 3. Sorry, one thing I will forget to describe here. Units of capacitor. C capacitance के units होते हैं फैराड, right? Q C को क्या लिखता है? Q upon V. Q के चार्ज कूलम अपॉन V, दैट मीन्स कूलम पर वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट को हम 1 फैराड बोलते हैं, राइट? तो फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, प्लीज रिमेंबर इट, फैराड इज द यूनिट. और माइक्रो तो आपको पता ही है, वैल्यू चेंज करते रहते हैं, चाहे मिली आ जाए चाहे माइक्रो, बट मोस्टली हम माइक्रो वाले कैपेसिटेंसेस यूज करते हैं, राइट? ओके, तो आपको लैब में भी आप जब प्रैक्टिकल करते हो इन हायर क्लासेस, सो यू विल गेट द माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस. सो यू विल सी हियर C1 हियर 5 माइक्रोफैरेड, 10 and 3. आप देख रहे होगे ये सीरीज में है या पैरेलल में, साफ पता चल रहा है. अगर मैं यहाँ से अगर करंट शो करती हूँ, यहाँ वोल्टेज देती हूँ, तो यहाँ पे करंट जहाँ जितना करंट जहाँ आएगा सेम, क्योंकि सीरीज में, तो सीरीज में करंट और चार्ज सेम होता है, राइट? तो सीरीज है तो इसको मैं रेसिप्रोकलिटी वाली फर्स्ट वाला यूज करूंगी इक्वेशन. तो यहाँ पे मैंने C12 मान लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट वाला, ठीक है, या आप CS भी लिख सकते हो. तो 1/C1 प्लस 1/C2 वैल्यू पुट करिए. C1 की 5 दी हुई है, C2 की 10. टेक LCM, यू विल गेट 3/10, बट इट्स नॉट योर आंसर. टेक इट रेसिप्रोकल, देन C12 इज गेट 10/3 माइक्रोफैरेड. तो ये तो हो गया C12. तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया और इसका एक कैपेसिटेंस बना देते हैं नेक्स्ट डायग्राम में. तो जैसे मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ, प्लीज डायग्राम स्टेप वाइज बनाते चाहिए चेंज करके. अब आपके पास दो कैपेसिटर्स को मिक्स करके एक बन गया, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. अब ये दोनों पैरेलल में, राइट? यहाँ से देखो, यहाँ पे जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे हो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे जो जाएगा जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उससे से माइनस करके बाकी का करंट यहाँ जाएगा, बट वोल्टेज सेम जाएगी, जितनी V है इधर भी V इधर भी V. तो ये होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल में तो सीधा ऐड करते हैं, C3 प्लस दिस वन कर देंगे, तो P आ गया 3 प्लस 10/3. टेक LCM, यू विल गेट योर रिलेशन, दैट इज 9/3 माइक्रोफैरेड. So this is numerical. I hope you will understand this lecture. Please guys, if you find any difficulty, any query, please let me know in your group. You can follow me on Insta, you can follow me on Facebook. I will give you description of Facebook. I will give you the link for joining my Facebook page, for my official Instagram. So from the description you will get the link, right? Please revising the concept, because बहुत सारे lectures अब तक हो चुके हैं. अगर आप पीछे वाला नहीं करोगे तो आपको अगर पोटेंशियल नहीं समझ आएगा तो कैपेसिटर नहीं समझ आएगा, राइट? सो प्लीज रेगुलरली डू रिविजन, स्टार्ट डूइंग रिविजन, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी ऑब्वियसली एकदम से आप पे प्रेशर आ जाएगा तो यू विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, राइट? सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू. तो हमने आज इस लेक्चर में क्या किया, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ. कैपेसिटर क्या होता है, प्रिंसिपल कैपेसिटर का. देन हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. देन आपको मैंने से फॉर्मूलाज डिपिक्ट किए स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के. देन वी विल डू द ग्रुपिंग, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट? सो लास्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच, स्टे सेफ. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट? और एंड देन after subscribing you will get the bell icon. Please hit that bell icon so that you will get the notifications for upcoming lecture. Thank you so much, stay safe, goodbye.